السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالضرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا کے محترم امیر مکرم فضیلت الشیخ عبدالوہاب عبدالعزیز جامعی حافظہ اللہ، اسی طرح سے جو آج کے اس عظیم الشان عظمت توحید یا پیغام توحید کانفرنس کے صدر محترم ہیں، جو عظیم الشان کانفرنس یہاں آپ کے سامنے اس گراؤنڈ میں ضلعی شہری جمعیت اہل حدیث شیموگا کے زیر اہتمام منعقد ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اس عظیم شان کانفرنس کے مہمان خصوصی جمعیت اہل حدیث شیموگا کے قابل احترام ذمہ داران، اراکین، منتظمین، اسی طرح سے آج کی اس عظیم شان کانفرنس کے مکرم معزز خطباء، مقررین، شیموگا کے اطراف کے جوانب کے مختلف مساجد کے، اسی طرح سے دعوتی سرگرمیوں سے منسلک ہمارے فاضل علماء، فضلاء، دعات، مبلغین، اسٹیج پر تشریف فرما جمیع علماء کرام، تمام مہمانان گرامی قدر، آپ تمام قابل احترام حاضرین، قابل احترام بزرگوں، مجلس میں تشریف فرما بڑی تعداد میں ہماری قابل احترام مائیں اور بہنیں، حوصلہ مند نوجوانان، اسی طرح سے عزیز بچے، میرے لیے شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ آج کی آپ کے سامنے منعقد اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق پر میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ اسی طرح سے صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا کے موقر ذمہ داران، شیموگا کے موقر ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حوصلہ دیا، یہ موقع بخشا کہ آپ سے ملاقات ہو اور تھوڑی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب اور سلف امت کی کچھ سیرت کی روشنی میں باتیں کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو سننے، اسی طرح سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کا یہ موقع میسر آیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو کو، اس ملاقات کو، اس مجلس کو ہم سب کے لیے خیر کی مجلس بنا دے، خیر کی گفتگو بنا دے، ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نفع بخش بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے کلام کی آیات سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، سلف امت کی سیرت سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبوں کو اللہ عز و جل اپنی زندگیوں میں ایمان، عقیدے، عمل، سلوک میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی، اصلاح پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچا مسلمان مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ہر طرح کا خیر داخل فرما دے، آخرت میں اپنی مغفرت سے، رضوان سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس کانفرنس میں جس عنوان پر کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ آپ نے سنا ہے، امت مسلمہ یا مسلمانوں کی پستی کے اسباب۔ اس مسئلے پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر تک گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس پہلو پر بہت زیادہ سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ فکر مندی سے ان باتوں پر واقعی غور کرنے سوچنے اور اس کے نتیجے میں عملی تبدیلی پیدا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ مسلمانوں کی پستی کے اسباب، یہاں یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اہل اسلام جس عظمت، شان و شوکت، ایسے ہی بلندی اور ایسے ہی رفعت، ثنا اور اس طرح کی جو عظیم خوبیوں سے آراستہ تھے، آراستہ رہنا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمی آ گئی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر خلل آ گیا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر تنزل آیا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر پستی آئی ہے۔ اس لیے ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ان اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ تنزل آیا ہے، تنزلی آئی ہے، جس کی وجہ سے انحطاط آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پستی آئی ہے۔ ہمیں واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات بنیادی طور پر پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کر دوں، اسے ہم اور آپ تمہید سمجھ لیں، گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند نکات پر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے مجھے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک بھی باتیں پہنچ رہی ہے اللہ عز و جل سبوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ جس تنزلی کی بات چل رہی ہے، جس انحطاط کی بات چل رہی ہے، جس پستی کی بات چل رہی ہے، اس تنزل، انحطاط، پستی، ذلت کا سبب یا اس کے اسباب جو بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی سبب باہر کا نہیں ہے۔ جو بھی سبب ہے یا جو بھی اسباب ہیں وہ سب اندر کے سبب ہیں، یعنی ہماری اپنی کمزوریاں، ہماری اپنی کوتاہیاں، ہمارا اپنا خلل، ہماری اپنی کمیاں ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اگر نہ بگاڑ لیا ہوتا، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ اتار لیا ہوتا، اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو اگر ہم نے چھوڑ نہ دیا ہوتا تو ہماری یہ حالت بھی نہ ہوتی، ہماری یہ درگت بھی نہ ہوتی۔ بل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر، نبی کے فرمان پر، اصل دین پر اگر ہم قائم رہیں، اس پر پورے طور پر کاربند رہیں، اللہ کے کلام کو، نبی کی سنت کو زندگی میں نافذ کرتے رہیں، تو بھلا کیسے تبدیلی آ جائے گی؟ وہ عظمت، شان و شوکت ذلت میں، پستی میں کیسے تبدیل ہو جائے گی؟ وہ بلندی آخر وہ نیچائی میں کیسے تبدیل ہو جائے گی؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ہم نے حقیقت میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بگاڑا ہے، اسی وجہ سے ہماری حالت بھی بگڑ گئی ہے۔ ہم نے جو اپنے آپ کو بگاڑ لیا، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا، اسی کی وجہ سے ہماری ذلت آ گئی، ہماری شان و شوکت کم ہو گئی، ہماری بلندی بدل گئی پستی کے اندر، ہماری عظمت اور شان و شوکت بدل گئی ذلت کے اندر، تنزل کے اندر، انحطاط کے اندر تبدیل ہو گئی۔ یہ ہمیں بہت بنیادی طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ایک دو بات ذکر کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے کلام کی ایک سے زیادہ آیتیں اس نقطے پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ کے کلام کی پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ بالکل سرسری طور پر یہ بتلاتی ہے آیت کریمہ کہ آخر ہماری یہ عظمت ذلت میں کیوں تبدیل ہو گئی، ہمارا مقام، ہماری بلندی، ہماری شان و شوکت، ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہم نے شاید اپنی تاریخ کو بھی فراموش کر دیا، ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کئی ایک فاضل اہل علم سے، مقررین سے گراں قدر علمی خطابات سنے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ مجھے یقین ہے ہمارا کوئی سٹیج الحمدللہ اس خالص مشن کی دعوت سے خالی نہیں ہوتا، اس خالص دعوت اور اس کے پیغام سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمارا ہر مقرر، ہمارا ہر خطیب، ہمارا ہر چھوٹا بڑا ذمہ دار یہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو وہ خالص دین کیسے پہنچایا جائے جس میں اس کی شان و شوکت ہے، عظمت ہے، بلندی ہے، دنیا میں عزت ہے، امن و امان ہے، راحت ہے، آخرت میں رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کا رضوان۔ یہ سارے علماء کرام اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے۔ میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے، جو بھی پریشانی تمہارے اوپر آئی ہے، جو بھی عظمت اور شان و شوکت چھن گئی، ذلت آئی، پستی آئی، پسپائی آئی، اور تمہارے یہاں انحطاط آیا، تنزل آیا،
اس کے پیچھے فبیما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے کرتوت کا دخل ہے، تمہارا اپنا کرتوت اس کے پیچھے ہے، تمہارا اپنا رویہ، تمہارا اپنا عمل، تمہارے اپنے ایمان کی کمی، تمہارے اپنے عقیدے کا فساد اور بگاڑ، تمہارے اپنے گناہ، تمہارے اپنے معاصی اور منکرات، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، بندگان کے حقوق میں، دنیا کے مسائل میں، کاروبار میں، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، سب کے ساتھ جو بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس میں ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری اوپر یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کسی کا مقام جو عظمت کا ہو وہ چھن جائے، کسی کی شان و شوکت چھین لی جائے اور اسے تنزل کے حوالے کر دیا جائے، اسے پستی کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو کسی پر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ بات اچھی طرح جان لیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آئی ہیں اس کا سبب تمہارے اپنے ہاتھوں کا عمل ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کے باوجود کہ ہمارے کرتوت گندے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا عمل بگڑ گیا، ہمارے اعمال عقیدے بگڑ گئے، فساد آ گیا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے، بہت کچھ نظر انداز کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر کوتاہی پر ہماری پکڑ کرے، ہماری ہر غلطی پر ہماری گرفت کرے، ہمارے ہر فساد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب دے، سزا دے، تو نہ جانے ہماری حالت کیا ہو جاتی۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، فضل ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری چیزوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ جو بھی بگاڑ آیا ہے، جو بھی پستی آئی ہے، ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، مشہور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کسی بھی قوم کی حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہیں بدل لے۔ جب کوئی قوم اپنی حالت بدل لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے بدل دیتا ہے، اس کی حالت کو بدل دیتا ہے، اس کے انجام کو، اس کی حالت زار کو، اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر ہم اسی عظمت کے نشان پر چلتے، وہی ایمان، وہی عقیدہ، وہی توحید، وہی شرک سے، کفر سے، نفاق سے، انحراف سے بیداری، وہی سنت کا راستہ، ہم اسی پر کاربند رہتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، بدعات سے، ہوائے نفس سے، خواہشات نفسانی سے، منمانی سے، دولت اور دنیا کے پیچھے بھاگ کر ایمان اور عمل کا سودا کرنے سے اگر ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ حالت نہ کرتا۔ آج حالت یہ ہے، ہر طرف رونا رویا جا رہا ہے، ہر طرف بلبلاہٹ ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیا اندر کیا باہر، کیا مشرق کیا مغرب، کیا شمال کیا جنوب، ہر طرف سے شکوے ہیں، ہمیں کھا لینے کی کوشش، ہمیں نگل لینے کی کوشش، ہمارے اپنے حقوق کا مسئلہ، ہمارے اپنے مقدسات کا مسئلہ، ہمارے اپنی دین کا، ہمارے اپنے عقیدے کا، ہمارے اپنی تعلیم و تربیت کا مسئلہ، ہمارے اپنے مختلف زندگی کے گوشوں کا مسئلہ، ہر طرف شکوہ ہی شکوہ ہے میرے بھائیوں۔ آخر یہ حالت کیوں بن گئی ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اگر ہم آپ اپنی حالت پر رہتے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے تو ہم بھی اسی حالت پر قائم رہتے۔ ہماری حالت بگڑ گئی، ہماری صورتحال بدل گئی، ہم عزت سے، شان و شوکت سے ذلت کی طرف آ گئے، تو پھر اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا، ہمارا عقیدہ بگڑ گیا، ہمارا ایمان بگڑ گیا، ہمارے اعمال بگڑ گئے، ہمارا سلوک بگڑ گیا، ہماری اپنی عبادات کے اندر بڑی کوتاہیاں آ گئی، ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ معاملات میں کوتاہی کرنا شروع کر دیا۔ کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں کوتاہی نہ پائی جاتی ہو، اور شئتم ام ابیتم، مانو یا نہ مانو میرے بھائیوں، صرف دعووں سے اور کالر اوپر اٹھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حقیقت تو ہمارے سامنے ہے، حالت زار تو ہمارے سامنے ہے، اس لیے آپ کو ہم کو ماننا ہی پڑے گا کہ جو کچھ حالت زار ہماری ہوئی ہے وہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ تو ایک بات طے ہے، اور اس بات کو آج نہیں میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرما دیا تھا جب ان کا دور حکومت تھا، دور خلافت تھا۔ اور آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب کون ہے؟ عمر بن خطاب مسلمانوں کے لیے صرف آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا ان سے سبق سیکھتی ہے، ان کے نظام سے، ان کی برتباری سے، ان کی صلابت سے، ان کی ایمان کی طاقت سے اور ان کی حکمت سے، دانائی سے، بصیرت سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو ذلیل تھے، حقیر تھے، ہم پست لوگ تھے، اذل، پوری دنیا میں ذلیل ترین قوم تھے، ہمارا نام بھی نہیں تھا، ہماری ذلت اور پستی کا یہ حال تھا کہ کوئی ہمارا ذکر بھی کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اعزنا اللہ بالاسلام،
اللہ نے ہمیں اس ذلت سے نکالا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت اور شان و شوکت عطا فرمائی. اسلام کے ذریعے سے شان و شوکت ملی, اسلام کے ذریعے سے عزت ملی, اسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفعت اور بلندی عطا فرمائی. اب ہم نے یاد رکھو, فرماتے ہیں یہ اصول اور ضابطہ یاد رہے کہ عزت اللہ نے اسلام کے ذریعے عطا فرمائی ہے, ورنہ ہم ذلیل تھے. اس لیے جب بھی عزت ملے گی تو اسلام سے ملے گی, جب بھی ذلت آئے گی تو اسلام سے دوری کی وجہ سے آئے گی. جتنا اسلام سے دور اتنی ہی ذلت, جتنا اسلام سے قریب اتنا ہی عزت. اور اگر اسلام سے دور ہوتے 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 اگر بہت دور نکل گئے تو ذلت تمہارا دامن نہیں چھوڑے گی. عزت شان و شوکت تمہیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ ضابطہ یاد رہے. وَمَهْمَ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. اب یاد رکھو عمر بن خطاب کا یہ پیغام, جب بھی ہم عزت شان و شوکت اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور تلاش کریں گے, اسلام کے علاوہ دین میں, اسلام کے علاوہ دھرم میں, اسلام کے علاوہ کلچر میں, اسلام کے علاوہ تہذیب میں, اسلام کے علاوہ اخلاق میں, اسلام کے علاوہ تمام تر چیزوں میں جہاں بھی ہم عزت تلاش کریں گے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت نہیں دے گا. اذلنا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا, رسوا کر دے گا. تو یاد رکھو, پتہ یہ چلا کہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہماری ذلت اور پستی کا یہ حال ہوا ہے, ورنہ ہم شان و شوکت میں تھے. یاد رکھو اس دور کو جب کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, ہمارے اسلاف نے اس پر چل کر کے دکھایا. اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے, اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے, پست ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. لیکن یاد رہے, اسلام جب سچا اسلام تمہاری زندگی میں ہوگا, سب کے حقوق ادا کرو گے. اسلام دنیا میں ظلم کے لیے نہیں آیا, اسلام دنیا میں عادل کے لیے آیا. یاد ہوگا میرے بھائیوں, حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں گئے, جو فارس کا کمانڈر تھا, اس کے بارگاہ میں گئے, اس کے دربار میں گئے, پوچھا اس نے کیوں آئے ہو, کیا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ تو پیغام کیا سنایا تھا؟ ابتعثنا اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے, ہمیں دنیا میں اللہ نے اس لیے بپا کیا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کا پیغام سنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے, اللہ کھانا دیتا ہے, اللہ صحت دیتا ہے, اللہ بیماری دیتا ہے, اللہ زندگی موت دیتا ہے. زندگی میں ایک ایک سیکنڈ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا. ساری نعمتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, جو بھی نعمت تمہارے اوپر ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو گے ہرگز کاؤنٹ نہیں کر سکو گے. اللہ کی ایک ایک نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. یاد رکھو اس بات کو یاد رکھو. کیا پیغام دیا ہمیں دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہی اللہ سب کچھ دینے والا ہے. ایک ایک بندے کو, چاہے وہ انسان ہو, جن ہو, حتیٰ کہ چاہے وہ چرند پرند ہو, حیوانات ہو, کیڑے مکوڑے ہو, پتھروں کے اندر, سمندر کی گہرائیوں کے اندر, اگر کوئی جاندار ہے اس کو روزی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. ہم سب کو اللہ ہی دیتا ہے. تو عبادت اللہ کی ہونی چاہیے. کیوں بندوں کی عبادت کرتے ہو؟ تو لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ. کہا تھا ہم نے دنیا میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی بندگی کرنے سے انسانوں کو نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی بندگی کی طرف, ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف لائیں. یہ پیغام تھا. اور کیا کہا تھا؟ اور دوسری بات, 3 پیغام دیا تھا. بات اصل میں لمبی نہ ہو جائے, 3 پیغام دیا تھا. میں دوسری بات بھی سرسری طور پر عرض کر دیتا ہوں. دوسرا پیغام یہ تھا لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ. اس لیے دنیا میں آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو دنیا کے مذاہب, دنیا کے ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عادل کی طرف لے کر کے آئیں. اس لیے دنیا میں ہم آئے ہیں. تیسری بات کیا کہی تھی؟ ہم تمہیں دنیا کی تنگی سے نکال کر اِلیٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ, دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے کر کے جائیں. تو اسلام عدل کے لیے آیا ہے. یاد رکھو, کوئی انسان مسلمان ظلم کرتا ہے یا اس کا کردار ہو سکتا ہے, اس کی غلطی ہو سکتی ہے, اس کی کوتاہی ہو سکتی ہے, اس کی کمی ہو سکتی ہے,
जैसे किसी भी इंसान से कोई कमी हो सकती है, लेकिन माफ करना, इस्लाम अदल के लिए आया है। इस्लाम का एक नुक्ता भी जुल्म का पैगाम नहीं देता। वो इस्लाम इंसान तो इंसान जाने दो, किसी जानवर पर जुल्म रवा नहीं समझता, किसी परिंदे पर जुल्म रवा नहीं समझता, किसी कीड़े मकोड़े पर, किसी कुत्ते बिल्ली पर भी जुल्म रवा नहीं समझता। भला कहां से वो इस्लाम जुल्म की तालीम दे सकता है? तो इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रा, एक ज़र्रे के बराबरी में अल्लाह तबारक व तआला जुल्म नहीं करता। तो इस्लाम आदल का दीन है। मैं अर्ज़ कर रहा था, ये पैगाम है दीन इस्लाम का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जब इस अजमत पर रखा था, हम इस पर कायम थे, तो हमारा मकाम भी बुलंद था। लेकिन जब हम इससे हट गए, हमने इसे छोड़ा, हमने इसे नजरअंदाज कर दिया, हमने दाएं बाएं आगे पीछे मशरिक मगरिब की तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। न जाने कौन कौन सी फिक्र, न जाने कौन कौन सा अकीदा, न जाने कौन कौन सा रास्ता, न जाने कौन कौन सा आइडियल हमने जिंदगी में डाल लिया। तो बस अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है कि जब हम अल्लाह के होंगे तो अल्लाह हमारा होगा, जब अल्लाह के दीन पर चलेंगे तो अल्लाह बुलंदी देगा, अल्लाह की ताला के दीन से बेदारी अख्तियार करेंगे तो अल्लाह जलील कर देगा, रुसवा कर देगा। अल्लाह के यहाँ कोई कीमत नहीं है किसी की। अगर कीमत है तो उसकी रिजा की जिंदगी गुजारने की कीमत है, ईमान की कीमत है, उसकी किताब की कीमत है, उसकी तौहीद की कीमत है, उसके नबी की सुन्नत पर चलने की कीमत है। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह की तौहीद को गले लगाओ, नबी की सुन्नत को गले लगाओ। ये सबसे बड़ी शान और शौकत का राज है। ये जब से हमारे हाथों से छूटा या कमजोर हुआ, हमारी इज्जत शान और शौकत जिल्लत में बदलने लगी। बहरहाल मेरे भाइयों, अब आइए जरा मैं ताफिल होना चाहता हूं, जरा मैं गिनाना चाहता हूं जल्दी जल्दी 2, 4, 6 असबाब। ऐसे तो 10 असबाब हो सकते हैं, लेकिन मैं चंद बातें गिनाना चाहता हूं। हमने आपके सामने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना इत्तखज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिर रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नजज़िल मुफ़्तरीन। ये आयत करीमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल जिन्होंने बछड़े की पूजा किया था, उस सियाक में है, उस पस मंजर में आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया, जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया, सयनालुहुम ग़ज़बुम मिर रब्बिहिम, अन करीब उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गजब आएगा, अल्लाह की नाराजगी की मार पड़ेगी। व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी में जिल्लत उन पर आ जाएगी, जिल्लत और पस्ती उन्हें पकड़ लेगी। व कज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन, और जितने भी लोग क़यामत तक आने वाले ये झूठ के रास्ते पर चलेंगे, इफ्तिरा, बछड़े की पूजा करने वाली हरकत करेंगे, यही बदला उनको अल्लाह तबारक व तआला देगा। आप आयत करीमा को समझें। आयत करीमा को सबसे पहली वजह जिल्लत और पस्ती की ये है कि हमारी तौहीद, हमारा एक अल्लाह तबारक व तआला के साथ इबादत का, रुबूबियत का, अस्मा व सिफात का जो अकीदा था, उसके अंदर बिगाड़ आ गया। हमने इबादत के लिए अल्लाह के दर को छोड़ करके या अल्लाह के दर के साथ साथ न जाने किस किस के दर पर सर झुकाना शुरू कर दिया। जब हमने अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह की पूजा करना शुरू कर दिया, अल्लाह के अलावा के लिए सजदा, अल्लाह के अलावा के लिए रुकू, अल्लाह के अलावा के लिए क़ियाम, अल्लाह के घर के अलावा का तवाफ, अल्लाह के अलावा के सामने दुआ के लिए हाथ उठाना, अल्लाह के अलावा के सामने अल्लाह के अलावा से डरना, अल्लाह के अलावा की उम्मीद से उम्मीद लगाना, अल्लाह के अलावा से फरियाद करना, अल्लाह के अलावा से इस्तिआनत मदद मांगना, अल्लाह ताला के अलावा की पनाह तलब करना, गरज इबादत के जितने काम हो सकते हैं, जब से हमने अल्लाह की इबादत का कोई काम अल्लाह के सिवा किसी और के लिए करना शुरू कर दिया, तो बस जिल्लत की शुरुआत हो गई। जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया, अल्लाह फरमाता है अनकरीब उनके ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल होगा। और क्या होगा? वह जिल्लतुन फिल हयातिद दुनिया, और दुनियावी जिंदगी में जिल्लत और रुसवाई आएगी। जिल्लत की बात कर रहे हैं ना, लोगों की, उम्मत की, मुसलमानों की जिल्लत के असबाब क्या हैं? ये देखो कुरान करीम कहता नस है, नस का मतलब क्या होता है? एकदम क्लियर। अल्लाह साफ फरमाता है ये जिल्लत क्यों आई है, ये पस्ती क्यों आई? इसलिए आई कि लोगों ने अल्लाह को छोड़ करके अल्लाह की मखलूक की इबादत करना शुरू कर दिया। इसलिए अल्लाह ताला का गजब भी आया, अल्लाह की नाराजगी की मार पड़ी, और दुनिया में जिल्लतुन फिल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी में जिल्लत उनके ऊपर मुसल्लत हो गई। अल्लाह, अब कोई कह सकता है ये बात तो उनके लिए है, ये बनी इस्राइल के लिए है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए है, फिरौन के दौर के लोगों के लिए है। नहीं, अल्लाह ने आगे फरमा दिया वकज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन,
इफ्तिरा करने वालों का बदला हम ऐसे ही दिया करते हैं। जब जब लोग शिर्क करेंगे, जब जब लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में किसी को शरीक ठहराएंगे, मेरे भाइयों इसमें छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं है। किसी नबी को शरीक ठहरा लो, अल्लाह की इबादत का हकदार बना दो, किसी नबी के लिए सजदा कर डालो, किसी वली के लिए सजदा कर डालो, किसी अल्लाह तबारक व तआला के बुजुर्ग और साले बंदे का सजदा कर डालो, किसी जिन शैतान का सजदा कर डालो, किसी भी गैरुल्लाह का सजदा कर डालो, सूरज का, चांद का सजदा कर डालो, किसी का भी सजदा कर डालो। अगर किसी गैरुल्लाह की इबादत की गई तो अल्लाह ताला फरमाता है वकज़ालिका नजिज़िल मुफ्तरीन, यही बदला सबका है। तो आज अगर हमें जिल्लत का मुंह देखना पड़ रहा है, अगर आज जिल्लत है, पसपाई है, तो मैं नहीं समझता कि इस मसले को समझने के लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अपने गिरदो पेश के हालात देख लो, वतने अजीज के मशरिक मगरिब शिमाल जनाब का जुनूब का जायजा ले लो, दुनिया के दीगर ममालिक में मुसलमानों के हालात का जायजा ले लो। कितने सर हैं जो अल्लाह के दर के सिवा अल्लाह की मखलूक के दरों पर झुक रहे हैं। झुक रहे कि नहीं झुक रहे? मस्जिदें वीरान हैं और मज़ारों पर भीड़ लगी हुई है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों के सरों को अपने दर पर झुकाने की तौफीक अता फरमाए। ये इबादत का काम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। वअन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये मस्जिदें सिर्फ वो नमाज की इबादत गाहें नहीं है, ये पेशानी भी मस्जिद है, यानी इसके जरिए सजदा किया जाता है, यानी ये पेशानियां अल्लाह के लिए है, इसलिए अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, पता चला जिल्लत का एक सबब क्या है? अकीदे का फसाद। अकीदे का फसाद, तौहीद में बिगाड़, अल्लाह पर इबादत, अल्लाह की इबादत और सच्चे ईमान के अंदर फसाद आया, इसलिए जिल्लत का मुंह देखना पड़ा। एक आयत करीमा की तरफ और इशारा करके बात में आगे बढ़ा देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस सालिहात लनस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकूना बि शैआ वमन कफर बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। सूरह नूर की आयत करीमा बड़ी अजीम शान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लाह का वादा है। किसके लिए वादा है? अल्लाह का वादा है उन लोगों को जिन लोगों ने ईमान, अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और नेक अमल किया। दो शर्तों के साथ अल्लाह का वादा है। ईमान होना चाहिए, अमल साले होना चाहिए। ईमान का माना क्या होता है? माफ करना मेरे भाइयों, ईमान के लफ्ज से हमें मोहब्बत है, ईमान के लफ्ज से मोहब्बत है। जबान से ईमान का लफ्ज निकालते हैं तो जज्बात पूरे तौर पर मोहब्बत से लबरेज होते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। ईमान का ईमान का माना जानना जरूरी है। ईमान तौहीद का नाम है, ईमान अल्लाह तबारक व तआला की तन्हा बंदगी का नाम है, ईमान अल्लाह की उबूदियत, रुबूबियत, अस्मा व सिफात का नाम है। ईमान 6 अरकान पर मुश्तमिल है। ईमान तो ईमान, जो लोग ईमान लाए यानी अल्लाह की खालिस तौहीद का अकीदा, एक अल्लाह की बंदगी का अकीदा रखा, अमल भी किया, नेक अमल किया, नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारा, उनके लिए अल्लाह ताला ने 3 वादा फरमाया। 3 वादा। क्या वादा है? नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दुनिया में जानशीनी अता फरमाएगा। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दीन की मजबूती अता फरमाएगा। नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला उनके खौफ को, उनके डर को अमन से बदल देगा। उनके खौफ को, उनके डर को अमन से बदल देगा, बेखौफ हो जाएंगे। आज जान के खतरे हैं, माल के खतरे हैं, इज्जत व आबरू के खतरे हैं, मुकद्दसात के खतरे हैं। अल्लाह ताला इन सारे खतरों को खत्म कर देगा। 3 वादा है बड़ा बड़ा। अल्लाह ने फरमाया वादा किसके लिए है? जो सच्चे ईमान वाले हैं, नेक अमल करने वाले हैं। अल्लाह ने आखिर में फिर रिपीट किया, अल्लाह ने दोहराया, क्या है वो? याबुदूननी ला युशरिकूना बि शैआ। शर्त ये है कि ये लोग सिर्फ मेरी इबादत करें, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराएं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये इज्जत, शान और शौकत, ताकत, कुव्वत और दीन की मजबूती, मुसलमानों की मजबूती अल्लाह ताला कब अता फरमाएगा? जब मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। देख लो मेरे भाइयों, देख लो कितने दर आबाद हैं अल्लाह तबारक व तआला के अलावा। अल्लाह ताला की बात के अलावा न जाने कितने दरों पर सर झुकाए जा रहे हैं।
मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन सरों को तू अपनी तरफ फेर दे। ए अल्लाह तबारक व तआला इनको शिर्क से, कुफ्र से और इस अल्लाह तबारक व तआला बदअकीदगी से अल्लाह ताला तू नजात अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाइयों को तौहीद का सच्चा अकीदा समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत के उलमा को ये माना समझने की और अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये सर जो अल्लाह के दर के अलावा दरों पर झुक रहे हैं, ये अल्लाह की कसम है, जब तक इससे उम्मत तौबा नहीं कर लेगी, जब तक खालिस अल्लाह की इबादत नहीं करेगी, जिल्लत कोई सूरत से नहीं हट सकती। जिल्लत हटाना है तो फिर ये जिल्लत कोई फिजिकल मसला नहीं है, कोई नजरियाती मसला नहीं है, कोई अपने आप और हमारे और आपके बीच में कोई सोचने समझने का मसला नहीं है। ये मामला अल्लाह तबारक व तआला के हक का मसला है। अगर अल्लाह के हक को पामाल किया जाएगा, अल्लाह इज्जत नहीं देगा, जिल्लत में मुब्तला कर देगा। इसलिए हमारा ईमान और अकीदा, तो पहला सबक क्या है? ईमान और अकीदे का फसाद, शिर्क है, कुफ्र है, अल्लाह के सिवा के सामने सजदा है, रुकू है, क़ियाम है, तवाफ है, दुआ है, नजर न्याज है, कुर्बानी है, ये सारी इबादत जो अल्लाह ताला के हक की इबादत है, किसी और के लिए किया जाएगा, इसकी हालत, इस हालत में तो कभी इज्जत नहीं मिल सकती। दूसरी बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, इज्जत क्यों बदल गई जिल्लत में? वो दूसरा सबक क्या है? वही हमारी और आपकी इज्जत का राज, हमारी और आपकी शान और शौकत का राज, तो मुझो दुनिया वालों को आजमत के मकाम पर फाइज करने के लिए आए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी नबी की जिंदगी को आइडियल बनाना, हमने जब तक उनको आइडियल बनाया, अल्लाह ने शान और शौकत की बुलंदी अता फरमाई। जब से हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपकी सुन्नत से, आपकी सीरत से रिश्ता कमजोर कर लिया, हमने इसकी मानना शुरू कर दिया, हमने उसकी मानना शुरू कर दिया, शख्सियत परस्ती शुरू कर दी, हमने औलिया परस्ती शुरू कर दी, हमने आइम्मा परस्ती शुरू कर दी, हमने ख्वाहिशात नफसानी के पीछे पढ़ करके उसकी गुलामी करना शुरू कर दिया, तो ये हालत हो गई मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी की इत्तिबा के बगैर, अल्लाह के नबी की इताअत के बगैर, आपकी सुन्नत को जिंदगी में नाफिज किए बगैर कभी इज्जत नहीं मिल सकती, शान और शौकत नहीं मिल सकती। याद रखो, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इख्तिसार के साथ दो तीन बातें अर्ज करनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बुइस्तु बैन यदै साअति बिस्सैफ, मुझे क़यामत से पहले पहले तलवार दे करके भेजा गया है, हत्ता युअबदल्लाहु वहदा, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए, व जुइला रिज़्क़ी तहता ज़िल्लि रुमही, और मेरी रोजी मेरे नेज़े के साये में रखी गई है, व जुइला ज़ुल्लु वस्सगारु अला मन खालफ अमरी, और क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, और जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बना दी गई है जो मेरे हुक्म की मुखालफत करे। मेरे हुक्म की मुखालफत करने वाले का मुकद्दर क्या है? जिल्लत है। वजुइला ज़ुल्लु, जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है, वस्सगार, पस्ती मुसल्लत कर दी गई है, हकारत मुसल्लत कर दी गई है, पसपाई मुसल्लत कर दी गई है, अला मन खालफ अमरी, जो मेरे हुक्म की मुखालफत करे। तो मेरे हुक्म की मुखालफत करने वाले की का मुकद्दर क्या होगा? जिल्लत होगा, पस्ती होगा उसका मुकद्दर। और मेरे भाइयों, आज हम 1446 में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी और आपकी तो बात ही क्या है? आपको वो इशारा कर देना चाहता हूं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, दुनिया में उनसे ज्यादा ऊंचे मकाम का कोई नहीं आया। अंबिया की फहरिस्त के बाद अगर दुनिया में कोई सबसे ऊंचे मकाम का है तो हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का मकाम है, जिनकी शुरुआत अबू बकर सिद्दीक से होती है और आखिरी से आखिरी सहाबी का मकाम है। याद रखो सहाबे किराम, याद रखो सहाबे किराम से ज्यादा अल्लाह ताला को अजीज और प्यारा अंबिया के बाद कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपको उहुद का मंजर याद है कि नहीं याद है? ग़ज़वे उहुद का मंजर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये जो पहाड़ी छोटी सी दिखाई दे रही है टीला, जिसको जबल रुमात कहते हैं, आइनैन कहते हैं, आपने फरमाया था इसके ऊपर 50 तीरंदाज मुकर्रर रहेंगे, 50 तीरंदाज रहेंगे। चाहे हम जंग जीत जाएं या हम जंग हार जाएं, हमारी कितनी भी अच्छी हालत हो जाए, हमारी कितनी भी बुरी हालत हो जाए, किसी भी हालत में तुमको वहां से हटना नहीं है, तुम्हें आखिरी दम तक वहीं टिके रहना है। अगर हम जंग जीत जाएं, माली गनीमत समेटना शुरू कर दे, तब भी तुमको वहां से हटना नहीं है, कुछ भी हो जाए तुमको हटना नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरकर्दगी में आपने वहां पर एक 50 तीरंदाजों का दस्ता मुकर्रर कर दिया और ये ताकीद कर दी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको याद होगा हुआ ये कि जब मुसलमानों ने जंग जीत ली और मुसलमान माली गनीमत समेटने लगे, तो ऊपर से 50 तीरंदाजों में से तकरीबन 39 तीरंदाज वहां से उतर गए और उन्होंने कहा अब तो मामला खत्म हो गया, अब तो मैदान हमारे हाथ में है, अब तो
फतेह का सेहरा हमारे हाथ में आ चुका है। अब यहाँ रहने की जरूरत कहाँ बाकी बची। चलो चलो हम भी माल गनीमत समेटना शुरू कर देते। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जो अल्लाह के नबी सलाम की तरफ से मुकर्रर थे अमीर, आपने फरमाया हलुमो हलुमो इलैना, हलुमो इलैना, मेरी तरफ आओ, मेरी बात सुनो, मत जाओ, नीचे मत उतरो। उन्होंने कहा अब तो सारा मसला खत्म हो चुका है, क्यों रोकते हो? उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम। अल्लाह के नबी ने फरमाया था हालत कुछ भी हो जाए लेकिन हमको यहां से नहीं उतरना है जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना आ जाए, हमें आपकी तरफ से इशारा ना मिल जाए कि उतर जाओ, तब तक हमें नहीं उतरना। लेकिन लोग उतर गए, 11 लोग तकरीबन बाकी बचे, बकिया सब लोग उतर गए। हालत क्या हुई? जीती हुई जंग को अल्लाह तबारक व तआला ने शिकस्त में, हार में तब्दील कर दिया। जब हार गए जीती हुई जंग तो सहाबे किराम कहने लगे अन्ना हादा, अरे ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, हम तो मारे गनीमत समेट रहे थे, कहां से ऐसी हमारी हालत हो गई। आप जानते हैं एक रसूल के हुक्म की मुखालफत की, रसूल करीम के एक हुक्म की मुखालफत की, जीती हुई जंग हार गए। अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद 200 घोड़सवारों का लश्कर लेकर के पीछे से आए और मुसलमानों पर हमला कर दिया। इधर से भी लश्कर, पीछे से पहाड़, मुसलमान पिस गए और एक झटके में 70 लोग शहीद हो गए। हालत कैसे हो गई? सहाबा कहने लगे अन्ना हाजा, ये कहां से हो गया? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये पूछते हैं कहां से ऐसी हालत हो गई, ये मंजर कैसे बदल गया, हम तो जीते हुए थे, हार कैसे गए? कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, अल्लाह के नबी आप बता दीजिए ये कोई और वजह नहीं है, हारने की वजह तुम हो, तुम्हारी वजह से जंग हारी है, वरना और कोई वजह नहीं है। तुमने रसूल के हुक्म की मुखालफत की तो अल्लाह ताला हुक्म रसूल की मुखालफत के बाद इज्जत नहीं देता, इज्जत छीन करके जिल्लत में डाल देता है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि अल्लाह ने माफ फरमा दिया, बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने माफ फरमा दिया उन्हें और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया। लेकिन कहने का मतलब है हुक्म रसूल की मुखालफत करने के नतीजे में कभी इज्जत नहीं मिल सकती। मेरे भाइयों, हमारा सब कुछ सरमाया चला जाए, सब कुछ सरमाया लुट जाए, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपका आइडियल, आपकी जिंदगी, आपकी इबादत, आपके अखलाक, आपके मुआमलात, गरज जिंदगी का एक एक नुक्ता सीरत का हमारी और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया होना चाहिए। जब तक उम्मत नबी की सुन्नत पर चलेगी अल्लाह इज्जत देगा, शान शौकत देगा, और जब उम्मत नबी से दूर हटेगी, किसी भी खूबसूरत नाम से, किसी भी खूबसूरत नारे से, किसी भी नाम से, निस्बत से, हवाले से, किसी भी बड़े से बड़े का हवाला दे करके अगर उम्मत नबी की सुन्नत की पैरवी करने से थोड़ी भी दूरी अख्तियार करेगी तो फिर याद रखो जो इला जुल्लु वस्सगारु अला मन खालफ अमरी, मेरी हुक्म की मुखालफत करने वाले पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह, बिल्कुल जल्दी तीसरी वजह जो आपके सामने जिक्र करना है वो ये है मेरे भाइयों कि हमारी और आपकी जो पस्ती का आलम है, हमारी और आपकी जो पस्ती की हालत बनी है, इसके पीछे क्या वजह है? नंबर 3, तीसरी वजह है मासी, मुनकरात, गुनाहों के काम। हमने इबादत से मुंह मोड़ लिया। हमारी नमाजों का क्या हाल है, हमारे रोजों का क्या हाल है, हमारी ज़कात का क्या हाल है, हमारे हज उम्रे का क्या हाल है, हमारे सच बोलने के हुक्म का क्या हाल है, हमारी अमानतदारी का क्या हाल है, हमारी दयानतदारी का क्या हाल है। हमें अल्लाह ताला ने छोटे बड़े गुनाहों से बचने के लिए कहा है, हमारा क्या हाल है, हमारा क्या हाल है? जरा जाके देखो, मामला इबादत का हो, मामला मामलात का हो, मामला कारोबार तिजारत लेन देन का मामला हो, कोई ऐसा मैदान नहीं है जहां हमने आपने गुनाहों का अंबार खड़ा न कर दिया हो। इल्ला मन रहिमल्लाह। बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी खतरनाक बात। याद रखो, गुनाह करके अल्लाह को नाराज करके कभी इज्जत नहीं पा सकते, कभी अल्लाह को नाराज करके इज्जत नहीं मिल सकती। अल्लाह को राजी करेंगे तो इज्जत मिलेगी, अल्लाह को नाराज करेंगे तो अल्लाह जलील कर देगा, रुसवा कर देगा। इस हवाले से बहुत सारी बातों के हवाले, बहुत सारी बातों के जिम्न में बिल्कुल सरसरी तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की मशहूर हदीस आपके सामने पेश करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया था, इज़ा तबायअतुम बिल-ईना व अखज़्तुम अज़नाबल बकर व रज़ीतुम बिज़्ज़रा व तरक्तुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउहु अन्कुम हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया था, अच्छी तरह सुन लो, जब तुम ईने का कारोबार करोगे, कारोबार, आज तो हालत ये हो गई है, कारोबार में हलाल की हराम की बात करो, कोई हमारा आलिम हमको फतवा दे ये काम हराम का, ये काम सूद का है, ये काम नाजायज है,
फला फला मसाइल जो कुछ चल रहे हैं ये सब नाजायज हैं, तो लोग कहते हैं अरे भाई आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में ये क्या उलमा हराम हराम का फतवा लगाते हैं, आजकल हम कितना बच सकते हैं, कारोबार में तो थोड़ा चलता ही है, कारोबार में तो थोड़ा बहुत सूद की मिलावट चलती ही है। इस तरह की बातें करके लोग दिल को तसल्ली देते हैं। याद रखो 2 टके ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन अल्लाह इज्जत नहीं देगा तो इज्जत नहीं मिल सकती है। याद रखना इस बात को। इसलिए ये हकीर दुनिया तुम्हें अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करने पर आमादा न करे। दुनिया मिले न मिले, अल्लाह की रिज़ा मिल जाए तो अल्लाह फकीरी में भी इज्जत अता फरमाएगा, और अल्लाह की मार पड़ जाए तो दौलत के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला हमें जलील और पस्त कर देगा। क्या समझते हो जिसके पास दौलत है वो इज्जत में है? गलत फहमी है। अगर हमने समझा कि जिसके पास दौलत है, माल है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, अंबार है, बैलेंस है, वो इज्जतदार है, अगर हमने ये नजरिया बना लिया, याद रखो धोखा है धोखा। अगर ये इज्जत है तो हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत कितनी थी? भला बताए कोई कितनी दौलत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास? आपकी हालत तो ये थी कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना गुजर जाता था और मोहम्मद और आले मोहम्मद के घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। मेरे भाइयों, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा अपने भांजे उर्वा से कहती है, उर्वा क्या बताऊं, कुन्ना नतरा अल हिलाल सुम्मल हिलाल सुम्मल हिलाल वमा तूक़दु नारुन फी बैतिन नुबुव्वा। एक चांद देखते थे, दूसरा महीना आता था, दूसरा चांद, तीसरा महीना आता था, तीसरा चांद देखते थे। मोहम्मद और आले मोहम्मद के घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। हालत ये थी, वफात हुई तो आपकी ज़िरह एक यहूदी के यहाँ 30 सात जौ के बदले में गिरवी रखी हुई थी। हालत ये थी, दौलत नहीं थी, 1 दिरहम भी नहीं था, कर्ज था आपके ऊपर। लेकिन दुनिया में आपसे ज्यादा इज्जत वाला कोई हो सकता है? भला बताओ भाई, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ज्यादा इज्जत वाला कोई हो सकता है? वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो उसके रसूल के लिए है, इज्जत तो मुसलमानों के लिए है, मोमिनों के लिए। जब उस वक्त जब सही मानों में ईमान वाले रहोगे। दावों का इस्लाम नहीं, दावों का ईमान नहीं, सच्चा ईमान, सच्चा इस्लाम तुम्हारी जिंदगी में होगा तो अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत और शान शौकत से नवाजेगा। तो अर्ज ये कर रहा था, गुनाहों की वजह से ये जिल्लत आती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा तबायअतुम बिल ईना, जब तुम ईने का कारोबार करोगे। अब मैं टाइम नहीं है, मैं आपको बताऊं, ईना एक सूदी कारोबार है। ईना क्या है? एक सूदी कारोबार का नाम है। जब तुम ईना यानी सूद का कारोबार करोगे, सूद का लेन देन करोगे, इंटरेस्ट पर तुम कमाई धमाई के लिए पूरा इंतजाम करते रहोगे। वरजी तुम भी जरा, और खेती बाड़ी में मस्त मगन रहोगे। हमारी खेती चलती रहे, अनाज पैदा होता रहे, मार्केट में मंडी में बिकता रहे, ये सिलसिला चलता रहे, यानी अपनी दुनिया बनती रहे बस। वरजी तुम भी जरा, और तुम खेती बाड़ी से खुश रहोगे। वह तरक तुमुल जिह, और क्या फरमाया? वह आपने अली साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह अखद तुम अजनाबल बकर, और तुम गायों के दुम पकड़ करके चलते रहोगे। पहले जमाने में जब खेतियां होती थी ना, तो जानवरों से खेतियां हुआ करती थी, तो आदमी खेती करता रहे और जानवर के पीछे हल लग करके हल चलाता रहे। जब तुम उसी पर कायम रहोगे, वह तरक तुमुल जिहाद, और तुम जिहाद छोड़ दोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। और उस वक्त तक तुम्हारी जिल्लत अल्लाह नहीं उठाएगा जब तक कि तुम अपने दीन की तरफ न पलट आओ। यहां पर मैं बता दूं, ये देखो कितने गुनाहों का जिक्र किया गया। सूद का कारोबार है, दुनियादारी है, खेती बाड़ी है। अच्छा, एक बात जो हदीस में आई हुई है, तुम जिहाद छोड़ दोगे। आज जिहाद को दंगा और फसाद बना दिया है जालिमों ने। याद रखो, जिहाद को बदनाम किया है अपनों ने, इस्लाम के नाम लेवाओं ने बदनाम किया। याद रखना, जिहाद दहशतगर्दी का नाम नहीं, जिहाद आतंक का नाम नहीं, जिहाद किसी के खून पर, जान पर, माल पर, आबरू पर नाहक हमला करने का नाम नहीं। याद रखो, जिहाद अमन कायम करने के लिए आया था, अमन खत्म करने के लिए नहीं आया था। लेकिन लोगों ने जिहाद के नाम पर उसे दहशतगर्दी और आतंक बना दिया। याद रखो, इस्लाम आतंकवाद से बरी है,
اور दहशत गर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुजरिम है, वो नादान है, वो नासमझ है जो इसको इस्लाम से जोड़ते हैं, इसलिए बदनाम करते हैं। और हमें और आपको ये मुश्किल पैदा होती है कि जिहाद का लफ्ज जब आता है तो ऐसा लगता है कि किसी बर्बरियत का नाम है, किसी जुल्म ज्यादती का नाम है। नहीं मेरे भाइयों, याद रखो वो जिहाद जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहा करते थे किसी भी दरख्त को भी नहीं काटना, किसी जानवर को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना, अल्लाहु अकबर, किसी बच्चे को तकलीफ नहीं पहुंचाना, किसी औरत को तकलीफ नहीं पहुंचाना, किसी अपनी इबादत गाह में बैठने वाले, किसी कनीसे में गिरजा घर में इबादत करने वाले को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। वो था जिहाद। और आज बदनाम कर दिया गया, इन अपनों ने बदनाम किया। याद रखो इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये क्या है याद रखो। तो गुनाहों की वजह से क्या होता है, जिल्लत आती है, पस्ती आती है। आज देख लो क्या हालत है। हम समझते हैं हमारे पास दौलत है, माल है, ओहदे है, मनसब है तो हमें इज्जत है। इज्जत नहीं मिलती। मुझे याद आती है वो बात हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की। वो कहते हैं इन्ना हाउलाई लौ तक़तक़त बिहिमुल बिगाल व हमलजत बिहिमुल बराज़ीन। फरमाते हैं इनकी सवारियों को न देखो, यानी इनके खच्चर पर जो ये टप टप करके खच्चरों पर सवार होकर के शान शौकत से चलते हैं, इससे मुतासिर मत हो जाओ। ये जो टट्टू और घोड़े पर सवार होकर के शान शौकत से झूमते हुए चलते हैं, इससे मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि कहते हैं इनकी जिल्लत इनकी पेशानी पर लिख दी गई है, क्योंकि अल्लाहु इल्ला अन युज़िल्ला मन आसा। अल्लाह ने तय कर दिया है कि जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा अल्लाह उसको जलील करके रहेगा। अल्लाह की नाफरमानी करने वालों की इज्जत नहीं मिल सकती है। तुम्हारी वजह से, हमारी वजह से किसी भी तरह का जान माल आबरू का नुकसान होता है। याद रखो इससे इस्लाम बदनाम होता है। ये हरकतें छोड़ो, गुमराह करने वालों, बहकाने वालों, फुसलाने वालों के, वर्गलाने वालों के वर्गलाने में ना आओ। अल्लाह की कसम है इससे बहुत नुकसान पहुंचा है इस्लाम को बदनाम कर दिया। इस्लाम के नाम लेवाओं ने बदनाम किया है। और अफसोस के साथ मौका नहीं है कि मैं बात करूं लंबी, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले में समझा दिया कि सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, अल्लाह ताला इन गुनाहों की वजह से तुम पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। और जब तक तुम इससे तौबा करके अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ नहीं पलटोगे, अल्लाह ताला जिल्लत को नहीं उठाएगा। ला यंज़िउहु अन्कुम, अल्लाह तुमसे जिल्लत उठाएगा नहीं। जलील रहोगे, पस्त रहोगे, बेइज्जत रहोगे, तुम्हारी कोई शान शौकत नहीं होगी, तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ऐसे ही मेरे भाइयों, ऐसे ही चौथा मसला हम समझें इस मसले को, जिल्लत क्यों आती है। जिल्लत की एक वजह यह है कि हम दुनियादार हो गए। दुनिया, माल इसी के पीछे भागने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और हदीस तो लंबी है, अबू दाऊद वगैरह की सही रिवायत आपने बार बार पढ़ा है, सुना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अन करीब वो वक्त आने वाला है जब दुनिया की कौमें दूसरी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे प्याले पर टूट पड़ते हैं। जैसे बहुत सारे भूखे लोग हों और भूख से बेताब हों और एक प्याला खाना आ जाए तो कैसे भूखे प्याले पर टूट पड़ते हैं, ऐसे ही दुनिया की कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात बयान फरमाई तो सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी हमारे मुसलमानों पर दुनिया की कौमें टूट पड़ेंगी, ऐसा क्यों होगा। वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी क्या वजह होगी, क्या हमारी तादाद कम होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, तादाद तुम्हारी कम नहीं होगी। वलाकिन्नकुम कसीर बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल। तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, तुम्हारी तादाद बहुत होगी, लेकिन तुम बिल्कुल फुसफुसे होगे। सैलाब आता है ना, जब कहीं सैलाब आता, फ्लड, तो आप देखिए जो कचरा होता है, जो सड़ी गली लकड़ियां होती हैं, जो कचरे होते हैं, वो सब पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। वजनदार पत्थर नीचे होता है, लेकिन सड़ी गली लकड़ियां पानी के ऊपर कचरा तैरना शुरू कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तादाद तुम्हारी बहुत होगी, लेकिन तुम बिल्कुल बेवजन होगे। जैसे सैलाब का कचरा होता है ना, तुम सैलाब के कचरे की तरह हो जाओगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने ये बात फरमाई, पूछा, आपने जवाब दिया। आप अलैहि सलाम ने फरमाया, हालत ये हो जाएगी तुम्हारी कि आज तो तुम्हारी हैबत है, लेकिन हालत ये हो जाएगी कि तुम्हारा खौफ, तुम्हारा डर
दुश्मनों के दिलों से निकल जाएगा, कोई डर नहीं होगा तुम्हारा, बेखौफ होंगे, निडर होकर के तुम्हारे खिलाफ सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी, क्या वजह क्या होगी इसकी? वजह क्या होगी? अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल में वहन डाल देगा, वहन डाल देगा। अल्लाह के नबी, वहन क्या चीज है जो हमारे दिल में आ जाएगी और दुश्मनों का हमारा खौफ दुश्मनों के दिल से निकल जाएगा और हमारे दिल में वहन आ जाएगा। अल्लाह के नबी, क्या है ये वहन? आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत, क्या मतलब है ये? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कई हदीसों के अंदर, इंसान बूढ़ा हो जाता है, इंसान मरने के करीब तो पहुंच जाता है, लेकिन दो चीजें उसके यहां जवान होती है। इंसान बूढ़ा हो जाता है, कब्र के करीब पहुंच जाता है, लेकिन दो चीजें उसकी जवान होती हैं। एक चीज है जिंदगी और उम्र से, उम्र की मोहब्बत, और जीना चाहता है, और जीना चाहता है, और मरना नहीं चाहता है। और दूसरी चीज क्या है? माल की लालच, तमन्नाएं, आरज़ुएं, भावनाएं, ये कम नहीं होती है। अल्लाह अकबर। तूलुल उमर व तूलुल अमल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्र लंबी चाहिए और आरज़ुएं और दौलत और माल, तो हालत क्या हो जाती है? हुब्ब दुनिया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। इंसान मरना नहीं चाहता है। याद आता है मंजर, हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर नक्शा खींचा है यहूदियों के बारे में। यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह मा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि लौ युअम्मर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यहूदी मरना नहीं चाहते हैं, यहूदी तमन्ना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि काश लंबी उम्र मिले, लंबी उम्र, और जिए, मौत नहीं चाहते, जिंदगी लंबी चाहते। अल्लाह फरमाता कितनी भी ये चाहत कर ले जिंदगी की, अगर 1000 साल भी जी ले तो 1000 साल के बाद ही मरना ही है, और मरने के बाद कुफ्र की वजह से जहन्नम में जाना ही है। ये लंबी उम्र जीने से जहन्नम से नहीं बच जाएंगे। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, ये जितनी भी लंबी उम्र पा जाएं, ये लंबी उम्र पा जाने से ये जहन्नम के अजाब से नहीं बच सकते। तो पता ये चला कि लंबी उम्र, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इंसान लंबी उम्र की दुआ करे, लेकिन हाँ, नेक अमल के साथ दुआ करे, नेक अमल के साथ, सच्चे ईमान के साथ, आदल के साथ, और तमाम इस्लामी अहकाम और तमाम शरीयत के मसाइल की पाबंदी के साथ। अल्लाह अकबर। तो हुस्न अमल के साथ लंबी जिंदगी तो अच्छी है, लेकिन बदअमली के साथ, ईमान के फसाद के साथ लंबी जिंदगी आजाब। सबसे बुरी बात यह है, सबसे बुरा इंसान यह है कि जिसको उम्र लंबी मिले लेकिन गुनाहों में लथपथ हो वो। इसलिए बात याद रखें कि ये सबसे बड़े मसाइल में से एक मसला है। तो हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत, इसकी वजह से जिल्लत और पस्ती आती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी हदीसें आपके सामने हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, लल फ़क़्र अख़शा अलैकुम वलाकिन अख़शा अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम फ़तुहलिककुम कमा अहलकतहुम। ऐ साथियों, मेरे सहाबा, मुझे इसका डर नहीं है कि तुम फकीर हो जाओगे, मुहताज हो जाओगे और फाका करोगे, हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाओगे। लल फ़क़्र अख़शा अलैकुम, मुझे इसका डर नहीं है, वलाकिन अख़शा, डर किस बात का है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अन तुबसत अलैकुम दुनिया, डर इस बात का है कि दुनिया खोल दी जाएगी, दुनिया बहुत ज्यादा तुम्हें हासिल हो जाएगी। जैसे पिछली उम्मतों पर दुनिया बहुत ज्यादा खोल दी गई थी, ऐसे तुम्हारे ऊपर भी दुनिया खोल दी जाएगी। यानी बड़ी माल दौलत की फरावानी हो जाएगी, अंबार की अंबार हो जाएंगे, बैलेंस की भरमार हो जाएगी, ये हालत हो जाएगी। और जैसे पिछली उम्मतों को माल की कसरत ने हिलाक कर दिया था, ऐसे ही ये माल तुम्हें भी हिलाक कर देगा, मुझे इसका डर है। तो यह है हुब्ब दुनिया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था इन्ना लिकुल्लि कौमिन फितना व इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मतिल माल। हर उम्मत का कोई ना कोई फितना होता है और इस उम्मत का फितना माल है। अल्लाहु अकबर, माल है इस उम्मत का फितना। अर्ज करना चाहता हूं ये है जिल्लत के असबाब चंद, और एक दो असबाब मुख्तसरन जिक्र करके बात खत्म करता हूं क्योंकि वक्त की पाबंदी जरूरी है। आप मेरे भाइयों, अगला क्यों जिल्लत आती है, जिल्लत के असबाब, पस्ती के असबाब क्या है? एक पांचवा सबब ये है, और अच्छी तरह से इसको समझ लेना, इसमें बड़ी गलतफहमियां पाई जाती, बड़ी गलतफहमियां। वो है फिरका बंदी, इत्तेहाद नहीं, इत्तिफाक नहीं, टोली टोली, गिरोह पार्टी पार्टी, धड़ा धड़ा, सेक, इसमें बट जाना, इसकी वजह से जिल्लत आती है। इसकी वजह से क्या आती है भाई? इसकी वजह से जिल्लत आती है। जिल्लत
वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम। आपस में इख्तिलाफ मत करो, इंतिशार मत करो, धड़े ढले टोले टोले गिरोह गिरोह में न बटो, वरना तुम पसपा हो जाओगे, तुम नाकाम हो जाओगे, फेल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दिया, ये राज बतला दिया कि इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ इंतिशार नहीं, फिरका वारियत नहीं, धड़बंदी नहीं, टोली टोली नहीं, डेढ़ डेढ़ ईंट की दीवारें नहीं, बल्कि एक अकीदा है तुम्हारा, एक ईमान है, एक रब है, एक कुरान है, एक नबी है, एक सुन्नत है, शरीयत। तो सब के सब एक बन करके रहो, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन। आप जानते हैं ना, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। और बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शेर वगैरह के माहौल में नहीं जाना चाहता। अर्ज ये करना चाहता हूं, ये इंतिशार है, इंतिशार, ये फिरका वारियत है, इसकी वजह से ये जिल्लत है, पस्ती है। मुझे आपके सामने एक बात थोड़ी सी वजाहत की करनी है। यहां गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए। गलत फहमी क्या नहीं होनी चाहिए? इज्तिमाइयत होनी चाहिए, लेकिन इज्तिमाइयत की मीनिंग सही समझना चाहिए। इज्तिमाइयत का माना क्या है? इत्तिहाद का माना क्या है? हर आदमी इत्तिहाद, हर आदमी इत्तिफाक, हर आदमी इज्तिमाइयत, हर आदमी है ना बात करता है, लेकिन अफसोस इसका माना भी समझने की जरूरत है, माना भी समझने की जरूरत है। इज्तिमाइयत कब होगी, इत्तिहाद कब होगा? जब उसी कुरान पर सब इकट्ठा हो जाएं, उसी सुन्नत पर सब इकट्ठा हो जाएं, उसी नबी के सहाबे किराम की तरह दीन को समझने पर सब इकट्ठा हो जाएं। वही अकीदा, वही इबादत, वही अखलाक, वही किरदार, वही हलाल और हराम, वही तमाम चीजें वही हो जाएं जिस पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वफात से पहले हमको आपको छोड़ा था। तब जाकर के इत्तिहाद होगा। इत्तिहाद का माना ये नहीं है कि सब अलग अलग रास्ते पर चलो, लेकिन एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो जाओ, एक स्टेशन पर इकट्ठा हो जाओ, एक एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो जाओ। एक को बेंगलोर जाना है, दूसरे को बॉम्बे जाना है, तीसरे को दिल्ली जाना है, चौथे को पांचवे को यहाँ फला फला जगह जाना है, लेकिन सब इकट्ठा हो गए हैं एक ही एयरपोर्ट पर। इसको इत्तिहाद नहीं कहते। इत्तिहाद कब होगा, इज्तिमाइयत कब होगी? जब सबका मिशन एक हो, सबका हदफ एक हो, सबका अकीदा एक हो, सबका रास्ता एक हो, सबका आइडियल नबी की सुन्नत एक हो, सबको दीन के, सबके यहां दीन के समझने का रास्ता ज़ाब्ता वही हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम ने समझा। इसलिए याद रखना, ये गलत फहमी भी जहन से निकाल दो। इत्तिहाद का नाम भीड़ लगाना नहीं है। बहुत सारे हमारे भाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसको लोग समझते हैं इत्तिहाद का मतलब होता है भीड़ इकट्ठा कर लो, आओ अपने अपने रास्ते पर, तुम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, आओ सब हम इकट्ठा हो जाएं। वो कब्र परस्ती करे, करता रहे, वो शख्सियत परस्ती करे, करता रहे, वो इस अकीदे पर रहे, वो इस अकीदे पर रहे, लेकिन आओ हम सब एक जगह भीड़ बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इसको इत्तिहाद नहीं कहते, इसको गैदरिंग कहते, इसको रश कहते, इसको भीड़ कहते, इसको इज्तिहाम कह सकते हैं, इसको इत्तिहाद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नबी के सहाबे किराम का इत्तिहाद ऐसा नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, इन्ना हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून, इन्ना हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फअबुदून। समझ लो, ये उम्मत एक उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूं, इसलिए तुम सब मेरी इबादत करो। इत्तिहाद का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ये उम्मत एक उम्मत है, इत्तिहाद एक उम्मत है। उम्मत इत्तिहाद कैसे होगा? वो अना रब्बुकुम फअबुदून, मैं तुम्हारा रब हूं, इसलिए तुम सब मेरी इबादत करो। ये है इत्तिहाद, ये है इत्तिहाद। तो एक अल्लाह की इबादत सब करेंगे तो इत्तिहाद होगा, और सब अलग अलग रास्ते पर चलेंगे तो इसको भीड़ तो कह सकते हैं, इत्तिहाद नहीं कह सकते। ऐसे ही व अना रब्बुकुम फत्तकून, ये उम्मत एक उम्मत है, मैं तुम्हारा रब हूं, इसलिए तुम मेरा तकवा अख्तियार करो। जिंदगी में अमल जो करना है दीन पर, सबका अमल वही होना चाहिए जो अल्लाह ताला ने कुरान में उतार दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत में उतार दिया और बयान कर दिया। इसी का नाम है, इसी का नाम है इत्तिहाद। इत्तिहाद इसलिए याद रखो, वो इत्तिहाद नहीं है, वो इत्तिहाद नहीं है कि अकीदे का फसाद, ईमान का फसाद और बिगाड़, सुन्नत से दूरी, शिर्क के साथ, कुफ्र के साथ, सूफियत के साथ, अकल परस्ती के साथ, यानी इत्तिहाद का माना लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया है। हमारे बाद भाइयों ने, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें दीन की सच्ची समझ अता फरमाए, कुरान और सुन्नत और सहाबे किराम के उसवे को अपने सामने रख करके दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बाद भाई कहते हैं आओ एक हो जाते हैं, आओ एक हो जाते हैं, इत्तिहाद के लिए नारे लगते हैं, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि उनके यहाँ इत्तिहाद का मतलब ये होता है सब अपने अपने अकीदे पर रहो, लेकिन आओ हम सब कहीं
ایک ہال میں اور ایک پلیٹ فارم پر ایک میدان میں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا بھی آ جائے، سنت کا انکار کرنے والا انکار کرتا رہے ہمارے ساتھ آ جائے، صحابہ کرام کو گالی دینے والا گالی دیتا رہے ہمارے ساتھ میں آ جائے، وحدت الوجود کا حلول کا عقیدہ رکھنے والا حلول کا عقیدہ رکھ کے ہمارے ساتھ میں آ جائے، اسلامی حکومتوں کو کافر کہنے والا، مسلمانوں کی تکفیر کرنے والا اسی تکفیر کے عقیدے پر رہے ہمارے ساتھ آ جائے، ہر آدمی اپنے اپنے عقیدے پر رہے اور آؤ ہم سب ایک ہو جائیں۔ اس کو اتحاد نہیں کہتے، اتحاد نام ہے ایک اللہ کی عبادت پر، ایک نبی کی سنت پر، ایک صحابہ کرام کے اسوے پر عمل کرنے کا نام اتحاد ہے۔ اسی کا نام تو اتحاد ختم ہوتا ہے تو ذلت آتی ہے، وحدت ہوتی ہے، وحدت ہوتی ہے، ایک عقیدے، ایک دین، ایک ایمان، ایک شریعت، ایک قبلہ و کعبہ، ایک اللہ، ایک نبی، ایک صحابہ کرام کے مشن پر جب سب چلیں گے تو پھر وحدت ہوگی، اور وحدت جب وہ ہوگی تو پھر ذلت نہیں ہوگی، شان و شوکت ہوگی۔ اسی لیے یاد رکھو صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں آیا، نہ کوئی خارجیت ہے، نہ رافضیت ہے، نہ انکار سنت ہے، نہ توہین صحابہ ہے، نہ حلول ہے، نہ صوفیت ہے وغیرہ، کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے وہ ایک تھے، اور اس کے بعد جب یہ ٹکڑے بنے تو پھر ایک نہیں رہ گئے، ایک نہیں رہ گئے تو عزت بھی اللہ نے اٹھا لی، ذلت اور پستی اللہ نے ہمارے مقدر میں ڈال دی۔ یاد رکھو آخری ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، وقت ختم ہو گیا، ایک بات آخری کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں 1 سے 2 منٹ کے اندر۔ وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، ذلت کے اسباب میں سے اچھی طرح سمجھنا اس چیز کو، ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جس راستے پر نبی علیہ السلام نے امت کو چھوڑا اور آپ نے یہ کہا کہ اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب جب تک میں زندہ تھا تم لوگ دین کے معاملے میں مجھ سے رجوع کرتے تھے، کنسلٹ کرتے تھے، ایمان عقیدہ حلال حرام سب کس سے پوچھنے کے لیے آتے تھے؟ مجھ سے پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو پھر یہ کام اب کس کے سر پر آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے وارثین علماء ہیں، علماء، علماء قرآن کے، سنت کے، صحابہ کے مشن کے علماء، توحید کے علماء، سنت کے علماء، یہ علماء دراصل انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں۔ جب تک امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر چلتی رہے گی تب تک عزت اور شان و شوکت کی زندگی گزارے گی۔ علماء اس امت کے آئیڈیل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بیان فرمایا اختصار کے ساتھ، الجماعۃ رحمہ والفرقۃ عذاب ومن اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اجتماعیت رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے۔ جسے جنت کا کریم حصہ چاہیے اسے چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے۔ کون سی جماعت؟ کون سی جماعت؟ جماعت اجتماعیت کب ہوگی؟ جماعت نام ہے اسی راستے پر چلنے کا جس راستے پر قرآن نے، اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے ہم کو چھوڑا ہے، اسی راستے پر چلنا۔ اور اس کا نمائندہ اگر کوئی ہے امت کے اندر تو امت کے علماء ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام سے جڑ کر کے رہو، سنت کے، توحید کے، سنت کے علماء سے وابستہ رہو۔ جب تک امت اپنے علماء سے وابستہ رہے گی فرقہ بندی میں نہیں جائے گی، پسپائی میں نہیں جائے گی، ذلت میں نہیں جائے گی، بلکہ شان و شوکت اور عظمت کی زندگی گزارے گی۔ اسی لیے آج کل یہ کام بھی بہت سارے اپنوں کی طرف سے، نادانوں کی طرف سے چل رہا ہے کہ امت کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کی جائے، علماء کی ناقدری کی جائے، علماء کے ساتھ، علماء کے بارے میں علماء پر اتہام اور الزام لگایا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ اس طرح کی بات بھی آج کر رہے ہیں، یہ علماء پچھلے انبیاء، پچھلے ائمہ، آج نہیں، آج تو ہیں ہی، پچھلے ائمہ حضرت امام ذہبی، حضرت امام ابن حجر، امام بیہقی، خطیب بغدادی اور ایسے ہی حضرت امام سیوطی اور دیگر علماء کے بارے میں کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب بدعتی تھے، یہ سب مشرک تھے، یہ سب بدعقیدہ تھے، یہ سب کے سب فلاں غلط کام کرنے، اس طرح سے امت کو، امت کے اماموں سے دور کرنے کا کام کرتے ہیں۔ آج بھی جو اسی سنت کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں اور علماء ہیں سنت کی راہ دکھانے والے، ان سے نفرت کی بیج بونے کا کام کرتے ہیں۔ یہ فرقہ پچھلے زمانے میں بھی تھا، حضرت ابن حجر کے زمانے میں بھی تھا اور عرب کے دور میں ابھی قریب میں بھی تھا، اور آج بھی ان کا فتنہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے۔ یہ لوگ امت کے عوام کو امت کے علماء سے دور کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر امت کے عوام علماء سے دور ہو جائیں گے تو پھر پستی اور ذلت کے سوا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی
अब मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसके सर पर है? इन्हीं उलमा की जिम्मे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया था, आपने फरमाया था, अल्लाह तबारक व तआला उलमा को मौत दे दे करके इल्म को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबकी आलिमन इत्तखज़न नास रुऊसन जुहाला, यहाँ तक कि एक एक करके उलमा की मौत हो जाएगी। उलमा की मौत होगी, उनके सीने में इल्म भी दफन हो जाएगा, कोई बाकी नहीं बचेगा। जब उलमा में से जाहिल बाकी बचेंगे, जाहिल बाकी बचेंगे और जिहालत के साथ उम्मत को गाइड करेंगे। गलत अकीदा, गलत ईमान, गलत इबादत, गलत फतवा दे दे करके उम्मत को मिसगाइड करेंगे। फदल्लू व अदल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। ये गुमराही, जहां दलालत है वहां जिल्लत है, जहां दलालत है वहां जिहालत है, जहां दलालत और जिहालत है वहां पर हिलाकत है, तबाही है। याद रखो, इसलिए उम्मत से, उम्मत के उलमा से हमेशा जुड़ करके रहो। उम्मत के उलमा ही अब ये नबी अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी हैं और मैंने अर्ज किया था कि तकरीबन 10-11 निकात हमारे सामने थे। हम सोच रहे थे कि आपके सामने गुफ्तगू हो, लेकिन बहरहाल वक्त का अपना एक निज़ाम है। हम चाहते हैं कि निज़ाम की पाबंदी हो। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों में जो बातें खैर की हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उससे फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के कलाम से, नबी की सुन्नत से, हज़रात सहाबे किराम की सीरत से, उनकी जिंदगी से अल्लाह ताला हमें और आपको इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। खुलासा ये है, अल्लाह के दीन पर रहोगे तो अल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह के दीन से दूर रहोगे, दुनिया और दीगर चीजों के पीछे भागोगे तो अल्लाह इज्जत ले लेगा, अल्लाह तबारक व तआला जिल्लत दे देगा। लोग फलसफा बयान करते हैं, कोई कहता है मुसलमान इसलिए जिल्लत में है क्योंकि उनके पास माल नहीं, कोई कहता है इनके पास हुकूमत नहीं, कोई कहता है इनके पास सियासत नहीं, कोई कहता है इनके पास दुनिया की आला आला डिग्री नहीं है, कोई कुछ कहता। याद रखो, कोई वजह नहीं है जिल्लत की। जिल्लत की असल वजह है अल्लाह को नाराज कर देना, अल्लाह के दीन से दूरी अख्तियार करना, अकीदे से, तौहीद से, सुन्नत से, सहाबे किराम के मिशन से दूरी अख्तियार करना, गुनाहों में लथपथ होना और दीगर असबाब की बुनियाद पर अल्लाह ताला इज्जत ले लेता है, जिल्लत और पस्ती मुकद्दर बना देता है। अल्लाह ताला मुझको आपको अज़मत और शान और शौकत के असबाब की जुस्तजू करने की तौफीक अता फरमाए और जिल्लत से, पस्ती से, उसके असबाब से अल्लाह ताला हमें और आपको दूर होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। इस बज़्म के सजाने वाले जमात के सूबाई जमीयत आप कर्नाटक और गोवा की जिम्मेदारान का शुक्रिया, इसी तरीके से यहाँ की जो शहरी जमीयत है शिमोगा की, इन तमाम जिम्मेदारों की शुक्रिया के साथ तमाम अहले इल्म, खुतबा और तमाम हाजिरीन, बुजुर्गों, नौजवानों, माओ बहनों, बच्चों की शुक्रिया के साथ अल्लाह तबारक व तआला की हम्द और उसके शुक्र के बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको आपको, अल्लाह ताला इस दुनिया में इज्जत और शान और शौकत की तौफीक अता फरमाए। जिल्लत से, पस्ती से अल्लाह ताला हम सबको, उसके असबाब से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।